Welcome back, students. So let us start a new topic, which is sequence and series. So in this video lesson, we are taking introduction part and exercise 9.1 of your NCERT textbook. सो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस. तो आप जैसे 10th क्लास में पढ़े थे सीक्वेंस के बारे में, तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? सीक्वेंस द नंबर्स और द टर्म्स, numbers or terms following a specific pattern like 2, 4, 6, 8. Now there is a specific pattern between these terms, and this is known as number, first number, second number, third number, fourth number, or we can say 2 as first terms, 4 as second term, 6 as third term, 8 as fourth term. Or you may have a pattern like this: 3, 9, 27, 81. It means it must hold a specific pattern. But now आगे बढ़ते हैं. 11th क्लास के हिसाब से अगर देखें तो सीक्वेंस बेसिकली क्या हो सकती है? सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स जो डोमेन है दैट इज ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे कि अगर मैं ऊपर देखें, ऊपर बताएं आपको इसके बारे में कि जो सीक्वेंस लिखी आपने ये, इट मे बी एज A1, फर्स्ट टर्म इज नोन एज A1, A2, A3 एंड सो ऑन. तो ये जो डोमेन है, डोमेन इज व्हाट? 1, 2, 3. दिस इज डोमेन जो आप पुट करेंगे इसके अंदर. तो domain is natural number, and the range means what? Like this A1 can be any number, any real number. So we can write this as a function like an. So here n is domain and an जो ये वैल्यू आएगी आपकी an, that is range. अगर आप इसे लिखें जैसे कि आप 10th क्लास में भी थोड़ा पढ़े थे इसके बारे में. इफ वी डिफाइन अ सीक्वेंस an एज 5 प्लस 2n, तो डोमेन जैसे कि हम चैप्टर 1 में 2 में पढ़े हैं कि डोमेन क्या है आपका? n क्या पुट कर सकते हैं? ओनली नेचुरल नंबर. यू कैन सब्स्टिट्यूट ओनली नेचुरल नंबर हेयर. तो इफ यू पुट 1, देन A1 is 7. If you put 2, then you will get 2 plus 5, 9. A3, similarly, it is 11, and it will go on in this way. So here we are having a specific pattern also, right? So this is basically what? This is a sequence, and you can define sequence in terms of function. So basically, sequence is a function from natural number to real number. It means जो डोमेन आपका है that is always natural number, and जो रेंज आपकी आएगी that is always real number. ये कुछ भी आ सकती है. It may be in fractions also, depending on the nature of this function. ये आपका real, irrational, rational, whatever it can be there. Then next topic is series. Series के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. Series. तो बेसिकली व्हाट इज अ सीरीज? तो सीरीज को समझने के लिए एक्चुअली सीक्वेंस से ही सीरीज बनेगा आपका. तो लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन an बी अ गिवन सीक्वेंस. देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 plus A3 and so on plus an plus is known as a series. And also it is denoted by summation k1 to n ak. So this is finite series. If it has finite terms, finite series.
and if this n is not there, or you can say k 1 to infinite ak, then it is infinite series. राइट, सो ये आपके सीक्वेंस और सीरीज हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज आपकी है 9.1। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। here we are having very easy questions. So these are the 10 questions in exercise 9.1. first I am taking 10 question. Then here write the first 5 terms of each of the sequence in the exercise 1 to 6 whose nth term are. So in question number 1, an equals to n plus 2, and we need to find the first 5 terms. तो बहुत आसान है क्वेश्चन बच्चों, ये आपने n की जगह 1 लिखना है, तो you will get first term, तो 1 plus 2, you will get 3. Then if you find second term a2, it will be 2 plus 4, 2, so it is 4 into 2 8. मतलब आप इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे एंड यू विल गेट नेक्स्ट टर्म्स. फॉर a3 इट इज n इज 3 plus 2, तो 5 into 3 50. Then a4 4 plus 2, and you will get 6 into 4 24. Then a5, because you need to write first 5 terms here, so 5 plus 2, so you will get 7 into 5 35. तो इसी तरह से बच्चों आपके बहुत आसान क्वेश्चन हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, 3 देखें, 4 5, चलो 5 नंबर और कर लेते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. हेयर an इज -1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1. तो बच्चों फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो -1 to the power 0 हो गया, और 5 to the power 1 plus 1 2 हो गया. तो -1 to the power 0 it means 1 and it is 25. Then second term is -1 to the power 2 minus 1 and 5 to the power 2 plus 1 3. बट अभी यहाँ पर देखेंगे -1 to the power 1 हो जाएगा, इट मीन्स नेगेटिव आएगा 125. देन थर्ड टर्म इज -1 to the power 3 minus 1, 5 to the power 3 plus 1 करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर n की जगह 1 प्लस करते रहना है, तो ये 4 हो जाएगा 4. तो -1 to the power 2 इट विल बी प्लस नाउ एंड इट इज 625. तो आप ऐसे चलते जाएंगे, आप अपनी नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसी तरह से आपको पहले 6 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, कर सकते हैं बड़े आराम से. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक देखते हैं. फाइंड द इंडिकेटेड टर्म. अब यहाँ पर आपको जैसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो टर्म बोला गया है सिर्फ वही फाइंड करनी है. तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आसान, आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं. फिर भी कैसे सोल्व करेंगे देखिए. नंबर 7 नंबर टर्म, nth टर्म इज 4n minus 3, और आपको निकालना है 17 टर्म. बस कुछ करना नहीं है, 17 पुट कर देना है n की जगह पर -3, तो इट विल बी 68 minus 3, तो आंसर इज 65. ठीक है, तो ऐसे आपको 24th टर्म फाइंड करनी है, आप उसे पुट कर लें, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं. अच्छा 10 नंबर देखते हैं, एक 10 नंबर कर लेते हैं. दैट इज an इक्वल्स टू n minus 2 डिवाइड बाई n plus 3, और आपको निकालना है यहाँ पर 20th टर्म a20. क्या करेंगे, n की जगह 20 पुट कर देंगे, बस 20 पुट करेंगे तो 20 minus 2 डिवाइड बाई 20 plus 3. So what you will get here,
20 into 80 divided by 23. So it will be what? 360 divided by 23. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टर्म्स हैं दे मे बी एनी रियल नंबर, बट आप यहाँ पर पुट करेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान इजी क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा इनको और अच्छे से देखें, सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो आपको 5 टर्म निकालनी है और उसके बाद वो जो सीरीज बनेगी उसको लिखकर दिखाना है, जबकि आपको बताया गया है 11 नंबर में दैट an is 3 an minus 1 प्लस 2 और n बोलता है कि मोर देन 1 पुट करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी a1 इज गिवन टू यू एज 3। तो आपको अब इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे n की जगह 2, तो a2 इक्वल्स टू 3a, n की जगह 2 रखेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस 2, तो a1 इज ऑलरेडी गिवन टू यू 3, तो 3 into 3 plus 2 and the answer is 11। ठीक है, ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब a2 से a3 फाइंड करेंगे, a3 से a4 फाइंड करेंगे, a4 से a5 फाइंड करेंगे। सो a3 इक्वल्स टू 3a, अब आप यहाँ n की जगह 3 रखेंगे तो यू विल गेट a2 प्लस 2, बट a2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 11 है, तो 11 into 3 33 plus 2, answer is 35। Then when you find a4 you will get 3a4 पुट करेंगे n की जगह, तो there will be 3 plus 2, ये तो सब में फिक्स है 2, तो a3 की वैल्यू 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 प्लस 2, तो आंसर इज 107। तो इस तरह से बच्चों आप आगे निकाल सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 321 प्लस 2 दैट विल बी 323, एंड एक टर्म और आप ऐसे लिख सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, आप ऊपर देख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखें ना, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 बुक में देखिए आप, नहीं तो आप ऊपर वापस जाकर जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर पेस्ट किए हैं वहाँ से देख सकते हो। हेयर an इज गिवन एज an माइनस 1 डिवाइड बाय n, और n इज मोर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स योर डोमेन इज 2 और मोर देन 2, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी दे रखी है -1। तो जैसे आप इसमें n की जगह 2 रखेंगे यू विल गेट a1 बाई 2 and a1 is -1, तो -1 by 2। Then when you find a3 फाइंड करने के लिए n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो a2 by 3, और a2 आपके पास ऑलरेडी है -1 by 2, तो -1 by 2 by 3 करेंगे तो -1 by 6। तो मैं बता रहा था आपको कि जो सीक्वेंस है आपकी वो कुछ भी हो सकती है, वो रियल नंबर में आ सकती हैं, बट आप पुट करेंगे ओनली नेचुरल नंबर। So for a4 it is a3 by 4, सॉरी यहाँ पर ये 3 आएगा, सो a3 by 4, a3 आपका -1 by 6, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 by 24। ऐसे आप नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, a5 आपका -1 by 120 हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। द फिबोनाची सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 a2 equal to 1, well, this is a sequence basically, and an equals to an minus 1 plus an minus 2. It is predefined. This is a Fibonacci sequence in which n is more than 2.
तो आपको फाइंड करना है आपको an+1 डिवाइड बाई an, वेयर n इज 1 2 3 4 5। तो इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5। सो यू विल गेट, इफ n इज 1 you will get a2 by a1, n is 2 it will be a3 by a2, if n is 3 a4 by a3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो पहले a2 by a1 निकाल लेते हैं। तो ऑलरेडी गिवन आपको a2 1 a1 1, तो आंसर इज 1। फिर आप a3 by a2 फाइंड करेंगे। अब a3, तो पहले आपको a3 निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन। सो योर a3 इज a, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2 प्लस यहाँ 1 2 3 पुट करेंगे तो a1, एंड इन दोनों की वैल्यू 1 + 1 2, सो इट इज 2 बाय a2 इज 1, आंसर इज 2। देन ऐसे आप इसमें a4 फाइंड करेंगे। तो a4 इक्वल्स टू a3 प्लस a2, और जबकि a3 की वैल्यू आपके पास है 2 और a2 की वैल्यू है आपके पास 1, तो इट विल बी 3। सो a3 आपका आ गया 2, a4 आपका 3, सो योर आंसर इज 3/2। ऐसे ही अभी आपने क्या करा था, 3 पुट किया था तो यहाँ तक पहुँचे आप। अभी आप 4 पुट करेंगे तो यू विल फाइंड a5 by a4। फिर आप क्या करें, a5 निकाल लेंगे। a5 जो भी आपको नंबर्स फाइंड करने हैं टर्म्स, वो सब यहाँ से निकलेंगी। तो a3 प्लस a4, so a3 is 2, a4 is 3, that is 5, so it will be 5, or a4 is 3, so 5/3। one more term you need to find, a6 by a5। तो उसके लिए आप यहाँ से इस रिलेशन की हेल्प से a6 निकाल लें और उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आई ये वाली एक्सरसाइज। अच्छे से इसको देख लें, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।